Hello, good morning to all. Welcome all of you for our next session of organic chemistry. I, Dr. Pushplata, along with you to continue this one. And today we are going to discuss about the representation of the organic molecules, how these can be represented either structurally or the three-dimensional formations. How can we show out the organic molecules? What are the main objective of these one? Because organic molecules representation must be required for understanding their properties. Sometimes organic molecules show their different properties on different representation. So the first one is for the organic molecules. As we know, organic molecules are those one which are extracted from the living beings or from the natural beings. So the first one is the structural representation. How can we represent structurally? Because representation must be required. How that can represent themselves into the compound formations? What are the main functions of that one? Because all the chemical and physical properties may be depends upon these ones, and chemical property especially. So the first one is the structural representations, and according to that one we know that firstly the simple structures may be formed by the Lewis dot structures. Lewis gives the first representation of the structures. Under that one, under the bonding, we can be already discussed that a simple carbon bonded with four different hydrogen. This one is the representation of a सिंपल कार्बन मॉलिक्यूल्स मीन्स मीथेन. एटलीस्ट हमें इतना पता है कि ये मीथेन का होता है, या फिर हमारे पास ये क्या होता है, इथेन के मॉलिक्यूल्स. नॉमेनक्लेचर में हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ दीज बी फॉर्म, बट अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस स्टडी वी नो दैट these are the different representation of these ones. Now how these can be abbreviated? This one is the CH4. तो ये हमारा क्या है, मीथेन. So this one is the molecular representation. Molecular representation. How many total number of the molecules present in this whole molecule? One of the carbon 4 atom of the हाइड्रोजन के मिक्स होके इसको क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल किसका बनाएंगे, मीथेन का. तो ये आपके पास क्या है, उसकी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है. एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट मीथेन मॉलिक्यूल, कि उसको हम ऐसे स्ट्रक्चरली लिख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो डिफरेंट फॉर्म में लिखी जा सकती है. अगर हमारे पास क्या है, किसी लार्ज मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लीजिए आप, CH3, CH2, CH2, CH2. How these can be arranged, we can discuss all these one literally in our next lecture. अब आप ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है. 5 कार्बन वाला हमें ऑलरेडी पता है कि कितना होता है, C5H12, तो मीन्स पेंटेन होगा. ठीक है ना. तो ये पेंटेन है, तो ये हमारे पास क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म. ठीक है. दिस वन इज द अनदर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल. इसी का रिप्रेजेंटेशन है, बट किस फॉर्म में, हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्मेशन है. कि ये हमारे पास कंडेंस फॉर्मेशन में, जिसको हम और भी ज़्यादा कंडेंस कर सकते हैं. कैसे, ऐसे 1 2 3. CH2 आपका 3 टाइम है, सो यू मे बी राइट दिस वन. सो ऑल दीज आर द कंडेंस्ड फॉर्म और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. ठीक है. कंडेंस लाइन में, कंडेंस स्ट्रक्चर में हम क्या है, बॉन्ड लाइंस भी शो कर सकते हैं. कैसे, आपका सिंपल लाइन वाइज दिस 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 एंड दिस दिस, इनको हम बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर्स ये हैं सभी क्या है, उसी रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा.
and this dot or corner sides indicated one of the carbon with their tetravalency. bonds उसके complete होंगे, तो आपका 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है और ये है, तो 1 2 3 4 5 ये भी आपके इसी पेंटेन का रिप्रेजेंटेशन है. इट्स ऑल्सो बी अ कंडेंस्ड फॉर्म, बट कंडेंस्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर्स. ये सिर्फ हम लाइनिंग्स में उसे करें. अगर यहाँ हमें ऐसे कहीं इसके साथ में लाइन दी है, इट अंडरस्टूड दैट इट हैव अ मिथाइल ग्रुप, वो CH3 फॉर्मेशन है. इसका मतलब उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, CH3 CH3 आ गया. बाकी आपके CH2 और लास्ट जो CH3 है वो एज इट इज़ है. आई एम जस्ट गिविंग दिस. अगर आप इसको एक एनलार्ज लाइन देते हो तो एनलार्ज लाइन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, CH3 का. हाइड्रोजन अंडरस्टूड है इसमें कि साथ में वो अपने हाइड्रोजन्स लेके चल रहा है. एंड एज वी नो द टर्मिनल कार्बन हैव 3 हाइड्रोजन्स एंड in between carbon have 2 hydrogens. So we can represent the structures in the different kind of formations and these may be considered as the structural representation. Open forms में है ये. Yeah? We can represent this structure in a closed ring also. Closed ring में भी फॉर्म कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या है, क्लोज रिंग का कैसे हो सकता है, 1 2 3 4 5. This one is cyclopentane. हम इसे क्लासिफिकेशन में भी रीड करेंगे बट रिप्रेजेंटेशन तो सेम इसी पेंटेन का है. यू मे बी से दैट पेंटेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ लॉन्ग चेन, इन अ ब्रांच चेन. आइसोमर्स में हमने इसी की ब्रांचेस पढ़ी थी ना, जब हमने क्या है स्ट्रक्चर क्या बनाया था, CH3 CH3, वहाँ ये काउंट हो जाता था. हमने यहाँ एक अटैच किया है इसमें और यहाँ हम टोटल 5 रखेंगे, तो ये आपका आइसोपेंटेन है. तो ये उसी की रिप्रेजेंटेशन थी इन डिफरेंट स्ट्रक्चर. एंड अंडर द आइसोमेरिज्म वी डिस्कस दीज वन. आइसोमर्स यही तो होते हैं, अ कंपाउंड हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर एंड स्पेस अरेंजमेंट भी. यहाँ हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बिहाफ पे उसे डिफरेंट शो कर रहे हैं. ये भी आपका पेंटेन का ही था. ये वाला कौन से वाला था, ये आइसोमर में हमने पढ़ा था, ये हमारा नियोपेंटेन है. एंड ऑल दीज आर द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेंटेन बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर. सो दीज में बी कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. मैंने सिर्फ आपको एक सिंगल एग्जाम्पल से समझाया है, आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी लेके कर सकते हैं. ऐसा नहीं है यहाँ इन का नहीं बनता, आइन का नहीं बनता, सभी की पॉसिबिलिटीज़ है. अगर आप ये करो 1 2 3, हमारा क्या है, प्रोपेन है ना, ये रिप्रेजेंट कर दिया. दिस वन इज द साइक्लोप्रोपेन. कहीं भी अगर आप इरेज करके डबल बॉन्ड बनाओगे तो इसमें भी डबल बॉन्ड बना दो, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइक्लोप्रोपेन. I hope you got these one. If you have the problem, you can be write down in the comment box. So we can be say that organic compounds or organic molecules may be represented differently in different structures and there are different name of these structures. Whenever a organic compound showing different kind of structure, those different structures may be considered as the isomer, and the phenomenon of showing these kind of structures differently may be considered as isomerism. That can also be discussed laterally with the different kinds of the organic compounds. Now comes to the next representation of the organic molecule. That one is the three-dimensional difference representation. 3D representation. 3D representation of organic molecule. How can we represent that organic molecule in three-dimensional formation? Because we know that existence of the molecules will always be in 3D. Representation may be in 2D
बट इट्स ऑलवेज बी हैविंग अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो उसके पास हमारे पास क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है, और 3 डायमेंशनल होता है तो हमें पता है ये आपका क्या है प्लेनर, जो हम पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। बट वी नो दैट दिस वन हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर according to sp3 hybridization. I am not repeating the hybridization here. हाइड्रोकार्बन्स में अगर हमें करना पड़ा तो हम दोबारा वहाँ डिस्कस करेंगे, बट वी नो दैट sp3 hybridization means tetrahedral structure with bond angle 107 to 109, that depends upon the repulsion of the electrons. ठीक है, अब क्या है, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑन द पेपर, मीन्स एक्चुअल 3D बट रिप्रेजेंटेड ऑन द 2D फॉर्मेशन। तो उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट मेथड होता है कि हम वन ऑफ द हाइड्रोजन को ऐसे, सेकेंड हाइड्रोजन को भी ऐसे रिप्रेजेंट करें, और जो ये थर्ड वाली है उसको हम ऐसे डैश फॉर्मेशंस में दिखते हैं, और जो फोर्थ वाला है उसको यहाँ, इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको अच्छे से दोबारा बना के बता देती हूँ कि वो अच्छे से बनाने, ठीक है ना। हमारे पास जो आएगा कैसे, जो फोर्थ वाला है उसको हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा डार्क, डार्क इन द सेंस पोजीशन में, हम इसको डार्क सॉलिड वेज देते हैं ऐसे, और इस वाले को कैसे देंगे, डॉटेड वेज। रीज़न, because whenever we consider this one 1 2 3, अब आप बनाते हो क्या, x एक्सिस y एक्सिस परपेंडिकुलर, z एक्सिस को हम हमेशा ऐसे दिखा देते हैं ऐसे, इज इट परपेंडिकुलर, एक्चुअल में होता तो यही है ना कि 3 जो हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन में हम उसको ऐसा दिखा देते हैं। और फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ तो इसके अपवर्ड में है, अबोव दिस वन, यहाँ फोर्थ हाइड्रोजन तो यहाँ है बेटा, एक्स वाई जेड कहीं भी अपॉर्चुनिटी आपके पास इक्वल होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, प्लेन वाइज भी वही है, एंड फोर्थ एटम इज अबोव एट दिस वन। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, व्हेनेवर वी हैंग आउट दिस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास क्या होता है, 4 डिफरेंट जो बॉन्ड्स हैं रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। ये वाले जो हमें बॉन्ड दिख रहे हैं इसका मतलब जो बॉन्ड लाइन है, दीज आर द बॉन्ड लाइंस इन द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि वो आपके x और y जो हम इनिशियली लेते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पेपर 2D तो होता है ना, तो उसके जो दोनों तरफ आए उस प्लेन में ये दोनों हाइड्रोजन है, और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपका क्या है, सॉलिड वेज, ठीक है। सॉलिड वेज यहाँ तो हाइड्रोजन ही लगे, कोई दूसरा मॉलिक्यूल है तो भी हम इसको कौन सा बोलते हैं, दिस वन इज द बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ठीक है। टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मतलब मेरी जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी तरफ, आप इस पे देखिए ना, ये भी हमारे पास क्या है, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है, सीधा 4। तो अगर मैंने यहाँ से इसको पिक कर रखा है तो ये वाला लाइन मेरी तरफ आएगा, ठीक है, और ये वाली लाइन यानी ये वाला बॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है, हम इसको सॉलिड वेज से इंडिकेटेड कर रहे हैं। डू यू गेट माई पॉइंट, कि ये वाला सॉलिड वेज उसको है कि ये वाली हाइड्रोजन और ये वाला बॉन्ड मेरी तरफ है, और ये वाला फिर क्या हो जाएगा, ये जो डैश वेज है हम इसको किसको कहेंगे, डैश्ड वेज। दिस वन इज द बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ठीक है ना। बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मीन्स अपोजिट टू द ऑब्जर्वर, किसी भी फॉर्म में कह सकते हो ना, अपोजिट टू ऑब्जर्वर,
कि वो ऑब्जर्वर से दूसरी तरफ यानी मेरे से दूसरी तरफ जो होगा। तो अगर हम ये बोल रहे थे कि ये वाला बॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है तो इसके अपोजिट तो ये ऊपर वाला बॉन्ड है, उसको हम डैश बेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? ये हमारी क्या होती है 3D रिप्रेजेंटेशन होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसलिए कर रहे हैं कि जब हमें पता हो कि हमने यहाँ कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया, यहाँ कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, फर्दर जब हम पढ़ेंगे जिनको हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं विच कैन चेंज द होल प्रॉपर्टी ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अगर आपका ये CH4 था मीथेन, इस मीथेन पे अगर मैं कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा देती हूँ तो आपको पता है वो क्या बन जाता है, मीथेनॉल, यानी वो अल्कोहल बन गया। सो दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप इज द, आपको यही इसका डेफिनेशन बता देते, फंक्शनल ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, आयंस, कंपाउंड्स, एटम्स, किसी का भी हो सकता है, which on attachment with a molecule can change its whole chemical properties, chemical nature or chemical properties। किसी भी तरफ करे, एंट्री ऑफ दैट ग्रुप कैन चेंज दियर ऑल केमिकल बिहेवियर, उसका पूरा का पूरा केमिकल बिहेवियर उसके साथ अटैचमेंट से, उसकी एंट्री से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर वो नई प्रॉपर्टी शो करना शुरू करेगा। ठीक है, तो वो हमें रिप्रेजेंटेशन क्या है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूल कि आपके अवे फॉर्मेशन पे कोई अटैचमेंट हुई है, आपकी अपोजिट कोई हुई है, या जो प्लेन वाली फॉर्मेशन में हुई है। तो इससे क्या है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर्मेशंस को हम क्या है अच्छे से रीड कर लेते हैं। क्लियर? सो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नाउ वी कैन डिस्कस द क्लासिफिकेशन। इसे में हम कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन भी कर लें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। Classification of organic compounds. Classification means to classify, to segregate or to separate out the compounds into different kinds of groups or subgroups according to their properties, difference in their properties according to their similarities and dissimilarity. And why we require to classify the organic compounds? Because it's not be easy to study whole compounds simultaneously in a single frame. सिंगल फ्रेम में तो हम कर ही नहीं सकते, तो क्या है उनका हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले हमारे पास जो नेचर ऑफ द कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड्स है, उसके बिहाफ पे अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास कितने होते हैं, दो कौन सा आपका ओपन चेन, लॉन्ग चेन जिसको कहते हैं, और रिंग साइक्लिक फॉर्मेशन का। ठीक है ना, ओपन और फिर ओपन का अपोजिट लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड चेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया रिंग फॉर्मेशन में, या फिर हमारे पास हो जाएगा साइक्लिक। तो अगर ये साइक्लिक है तो ये क्या है, असाइक्लिक है। इज इट क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So open chain organic compounds are those organic compounds which may be found in their long formation, long chain, either may be in the branch or sub branch, कितने भी हो सकते हैं, बट उनकी क्या है स्ट्रक्चर्स उसके हमारे पास बहुत ज़्यादा है। मॉलिकुलर मॉडल्स में तो हम बॉल से दिखाते हैं ना, बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल्स होते हैं, आप लोगों ने पता नहीं जूनियर क्लासेस में देखे हैं नहीं। और क्लोज्ड चेन का मतलब दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन बी फाउंड इन दियर क्लोज्ड फॉर्मेशन।
अभी अभी हमने जो रिसेंटली पढ़ा कौन सा आपका पेंटेन का रिप्रेजेंटेशन, तो अगर हमारी ये वाली रिप्रेजेंटेशन थी तो ये किस में काउंट होगी, आपकी ओपन चेन और लॉन्ग चेन और असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और क्लोज में कौन सा था, क्लोज में हमारा हो गया ये वाला, क्या, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर जो था वो हमारा एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इज इट क्लियर। अब हमारे जो असाइक्लिक थे यानी कि विदाउट रिंग वाले, क्लोज्ड नहीं हैं, जो उन असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स का टाइप, कि वो कितने टाइप के होते हैं, असाइक्लिक फॉर्मेशंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो असाइक्लिक और ओपन चेन फॉर्मेशंस में हमारे पास जो होंगे कौन से होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, जो ओपन चेन में जितने भी लिखे जाएं, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके, एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस, यानी कि हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे कौन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Saturated hydrocarbons are those kind of the organic compounds which contain only carbon-carbon single bond. They always be linked with a single sigma bond formations, and unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbons which are having multiple bond togetherly. They may form a different kinds of multiple form, either double bond or triple bond. Those can be considered as the unsaturated hydrocarbon. So we can discuss the classification of these organic compounds maybe in our next video under the nomenclature process, and you may be learn up to this one. Now in this video we are going to discuss our representation and common classification of the organic compounds. To continue the next one, be observe the next one or next video or our coming video. Okay, thank you, thanks a lot, have a nice day.